Good evening students, welcome back to my YouTube channel. I am your Jaswinder Singh Sran. Today once again here with a topic from class 7th chapter number 1 exercise 1.3. Before that, as we are doing discussion of subjective based approach of this education of mathematics. So today we will study about integers, multiplication of integers. In my previous video we have studied about addition of integers by following various property and subtraction of integers also by following various property. Today we are going to discuss about multiplication of integer. Multiplication of integer, that first of all we will discuss about that how we can multiply different types of integer. Integers, you know, two type are there, negative and positive. Okay, so when you are doing multiplication of positive integer with a negative integer, what will be effect on its a product? Okay, first of all take an example of negative and positive integer. Okay, this you can take like 3 multiplied by -4. Then what will be its answer? Its answer will be 12 and with the minus sign. Because beta, in very first videos we have discussed about, in many cases you have discussed that when you are multiplying a sign, positive with negative, negative with positive, positive with positive, or negative with negative, then how these are changing in case of multiplication? That if opposite signs are there, then we will follow negative sign. If same to same signs are there, then we are following positive sign. Okay, same here in this product. If you are doing multiplication with positive and negative, whether maybe, okay, with a different order like -4 into 3, its answer will be also -12. Take a more example. 3 minus 2, it's -6. -2 into 3 also -6, means one number is positive, another is a negative integer. When you will get product, you will get product a negative integer only. Clear? So if you are doing a multiplication of two negative integers, second case, -2 with -3, then as we have discussed here that minus multiply by minus, but we will get a positive result. So -2 into 3 plus 6, -12 into -4 plus 48, -2 into -7 plus 14, means the negative negative, what will get result? Positive. But it is possible in case of a multiplication only. Next is a product of 3 or more negative integers. So it is very important, when there are 3 or more negative integers there, then what we will do? But I am telling you, there is a very simple rule. If a negative sign coming even number of times, even number of times, suppose negative sign came 2 times, okay, negative sign came 4 times, negative sign came 6 times, negative sign came 8 times, negative sign came 10 times, then we will get a product positive only. Okay, if a negative sign is coming odd number of times, odd number of time in any statement like 1, 3, 5, 7, 9, then its answer will come negative only. How? First case we will discuss. First suppose and your product is there -2 into -3. Now this is a even time, that one time here came, one time here came, so its answer will be +6. Take second example. If it was the first example of this, now it is a second example. If 2 minus 3 minus 4 minus 5, now you check here minus sign came how many times? 4 times. Okay, 4 times came, that means even number of time, then its answer will be also positive. 2 3 is 6, 4 is 24, 5 is 120. Okay, clear? Like this way, C part 6 times, -1 multiply -2 multiply -1 multiply -3 multiply -4 multiply 1. Okay, so now you check, this minus sign came how many times? 6 times. 6 times also even, so its answer will be positive. You check beta, here also answer positive, here also positive, here also will be positive. You understood? 2 1 is 2, 2 3 is 6, 2 4 is 2 3 is 6, 6 4 is 24, so its answer will be positive 24.
Now we'll discuss second case. If negative sign coming odd number of time. Odd number of time means like it is coming 3 times. -1 into -2 into -3. So it is, you look there, minus sign came 3 times, so its answer will be -6. Why? Because this minus and minus will be plus, plus into minus again. So now take second example. -1, -2, -3, -4, -5. So now this negative sign came 5 times. 5 times means odd times. If odd time, then your answer will be negative. Getting my point? बेटा अगर आपने पॉजिटिव नंबर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया है, मीन्स इवन नंबर, जैसे कि 2 बार आपका नेगेटिव साइन आया है और 4 बार आ रहा है और 6 बार आ रहा है और 8 बार आ रहा है और 10 बार आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आंसर को पॉजिटिव लिख लेना है डायरेक्टली। अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है स्टेटमेंट में 3 दफ़ा और 5 बार और 7 बार और 9 बार, तो आपने क्या करना है, आंसर में आपने क्या लिखना है, नेगेटिव। सो इट्स आंसर विल बी 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120. So its answer will be 120 and negative, because this is negative sign came 5 times. Understood beta? So now next stage, property of multiplication of integer. ठीक है, these property are very crucial, okay, in addition also, in subtraction also, in multiplication also. Closure under multiplication, I told you that integers are closer. How? Means if you are multiplying any integer with the integer, your answer is coming definitely integer only, like 1 minus 2, 1 minus 1 multiplied by 2, minus 2, 3 2 ja 6, these are integer only. Minus 12 into minus 3 48, so this will be also integer. So these all are integer, that means a closure under multiplication. So integers are closed, integers are closed under multiplication, okay, under multiplication. This is multiply sign. Next, commutative of multiplication, okay. Commutativity means if you are multiplying any integer with any integer, you can change its order, a into b, b into a. Means 2 minus 2 into 3 also 6 answer, 3 into minus 2 also is minus 6 answer. So you can change their order, means a into b is equal to b into a. Associative we are following in case of 3 numbers, means a into b into c by grouping them. लास्ट 3 डिजिट का आपने ग्रुप बनाना है और फर्स्ट 2 डिजिट का ग्रुप बनाना है। जब आप ग्रुप बनाएंगे तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, जैसे -2 इंटू 3 इंटू -2 इसको चेंज कर लो, -4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर -2 इंटू 3 इंटू -4, इसका आंसर क्या आएगा, -2 इंटू 12, इसका आंसर भी आएगा 24। इसका आगे -6 इंटू -4, इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, +24। ओके, इधर भी +24 था, इधर भी +24। तो इसका मतलब क्या होगा कि एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एसोसिएटिव होगी इन केस ऑफ इंटीजर। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, एसोसिएटिव भी होगी। अब नेक्स्ट आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी is very important in case of multiplication. Distributive property is quite simple. This we will also apply in case of 3 numbers. One is in case of addition, one is in case of subtraction. When you will apply for addition, firstly first term multiply with the first a into b, then this is positive sign a into c. ओके, पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया और उनका हमने क्या लिया, एडिशन, मीन्स सम किया। इसी तरह से अगर नेगेटिव साइन हो तो पहले 2 को a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, देन नेगेटिव साइन, देन a इंटू सी। सो ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो हम इसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए एग्जांपल 2 इंटू 3 प्लस 4। सो पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 मीन्स 8, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 आंसर। ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, अब नेगेटिव वाली एग्जांपल ले लो। ओके, नेगेटिव वाली एग्जांपल, उसमें 2 इंटू 100 माइनस 2 लिख लेते हैं। पहले 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को
2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आएगा, 2 को 2 के साथ, तो 200 माइनस 4 इज इक्वल टू 190। ऐसे आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ये आपने याद रखना है स्टेटमेंट को, कि जो हमारे पास कॉमन है उस टर्म को हमने अकेली अकेली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसकी एग्जांपल मैंने ये वाली बता दी, दूसरी की एग्जांपल ये बता दी। आप मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, अगर किसी भी इंटीजर को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे -1 को जीरो के साथ करिए जीरो, जीरो को -1 के साथ करिए तो भी जीरो, -17 को कीजिए, किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय वन, वन क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी मीन है जिसके साथ आपके आंसर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ओके, सो ये वन के साथ अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक -17 वन जा -17, 34 इंटू वन 34, -48 इंटू वन -48, तो ये क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन बाय वन होगी। अब हम इस मल्टीप्लिकेशन ईजी कैसे बना सकते हैं? ईजी बनाने के लिए हमने क्या करना है? नंबर्स को उनके प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज करके लिखना है। जैसे कि हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें से हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 हमने करनी है आज, तो इसमें से एग्जांपल ले लो। पहली एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हम करते हैं पार्ट नंबर हम ले लेते हैं इसमें से कोई भी एच पार्ट ले लो। तो इसमें है -18 इंटू 5 इंटू -4। इसमें से आपने क्या करना है? पहले किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले चेक कीजिए कि इसमें नेगेटिव साइन कितनी दफ़ा आ रहा है। 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसमें इट मीन हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद जो इसकी बेसिक टर्म्स है, साइन को छोड़कर जो हमारे पास बेसिक टर्म है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। 18 5 जा क्या आएगा? 90, और 90 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 94 जा 360, तो आंसर क्या आ गया हमारा? -360। ये तो हो गया भाई। अगर मल्टीप्लिकेशन को और भी इजी बनाना है, कई बार हमारे पास टर्म्स होती हैं ऐसी टर्म, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल लेकर। ओके, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल आ गई 20 -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। ओके, हमारे पास पहले तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है? उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट इजीली हो जाए। जैसे कि हम इसमें यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा -20, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? +10 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो देख ये क्या हो गया? ईजी हो गया। 10 को आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 इंटू 20 200 आ जाएगा, सॉरी। ओके, फिर 200 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1400। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2 का दूसरा पार्ट। इसमें क्या हुआ? हमने मल्टीप्लाई को इजी बना लिया। कैसे इजी बना सकते हैं? जिन टर्म्स का सोल्यूशन इजीली आता है उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि उन नंबर को देख लीजिए जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है? 10 बन रहा है, और उन नंबर को देख लीजिए जिसका प्रोडक्ट हमारा हंड्रेड्स में आ रहा है, और उन नंबर को देख लीजिए जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 1000 में आ रहा है। उनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन के हम कोई 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये वेरी इजी है। इसमें आपने पहले तो साइन देखने हैं, ठीक है। एक पार्ट तो मैंने करवा दिया जहाँ पर नेगेटिव साइन आया ऐसे 3 टाइम। अब इसमें हम एक एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ए पार्ट हो गया 3 इंटू -1, तो इसमें आपने स्टडी क्या करना है? सिंबल को स्टडी करना है। जैसे कि एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -3, बिकॉज बेटा नेगेटिव साइन हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? ऑड टाइम जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर यही हमारे पास इवन टाइम आ जाए, जैसे इसका ई पार्ट हो गया, ई पार्ट में देखिए -15 इंटू 0 इंटू -18, तो इसमें तो डेफिनेटली कि 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ओके, कोई और नंबर ले लो, जी पार्ट ले लो इसका। इसमें क्या आ जाएगा? 9 -3 -6, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले तो ये नेगेटिव साइन कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव ही आएगा। तो 9 3 जा
27 6 या इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 162 आ जाएगा, 162 और पॉजिटिव होगा। क्लियर बेटा? और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -27 आ जाएगा, -27 को अगेन 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा +162। तो ये हो गया पर सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन में आपने देख लेना है कि नेगेटिव साइन आपके पास कितनी दफ़ा आ रहा है। तो अगर जिसका मैंने ए पार्ट करवा दिया, ई करवा दिया, जी करवा दिया, एच करा दिया, इसका बी सी डी ओके, और उसके बाद ई भी करवा दिया मैंने, एफ रह गया, एफ पार्ट, एच पार्ट रह गया, आई पार्ट रह गया, जे पार्ट रह गया। ये आपने खुद करना है, ट्राई करना है अपने आप, ठीक है, क्योंकि इजी है, सिंपल प्रोडक्ट है, अपने आप कर लेना है। तो हमारे पास अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपने देखिए इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास कि वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट। इनको हमने सेकंड यू चेक दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट if we compare this statement with the property, that properties we have studied, one of them distributive property, you compare with it, you check that there is term a into b plus c is equal to a into b plus a into c. Here same a on the place 18, on the place of b 7, on the place of c -3. Okay, so we'll check both sides that answers are equal or not. First of all, we will write first a part, left hand side you write, left hand side 18 into 7 plus -3. Okay, then this side right hand side 18 into 7 plus 18 into -3. Okay beta, so this answer is 18 into 7 plus minus will be -3, it will be 18 into 4, okay, it will be 72. And this side right hand side 18 7 ja 126 minus this 18 into -3 will be -54, because beta 1 was positive, 18 was positive and -3 was negative, so answer will be -54. So this will be 126 minus 54, because this is plus into minus minus, so what you will get, you will get 72. So this is left hand side also 72, right hand side also 72, so hence verified, because left hand side is equal to right hand side, so your answer is verified. Next is it's the second part. Second part quite simple. Compare this with same property, only first part. First we will multiply them, okay, then you will get the same answer, that both sides you will get same answer or not. Okay, this is according to property. Okay, by this property they have written separate 18 multiplied by 7, 18 multiplied by 3, same here 21 multiplied by 4, 21 multiplied by -6. Okay, so you have to check that both side answers are coming same. It is just a verification of property only there. So this you will get same -4. So this you will get left hand side, this is, that's a right hand side, we will solve both. So what you will get answer, it will be -21 into -4 and -6, -21 into -10, so your answer will be +210, because minus minus plus. This side this will be minus minus +8, okay, and this will be 21 6 ja 126, this is also plus, okay. So what you will get, you will check that this was 21, but 21 4 ja 84, so it was a mistake here, misprinting 84. Okay, so 84
84 plus 126, you will get also answer 210. So left hand side and right hand side both are equal, so it means hence verified that our answer is correct, that a given statement is correct. So now third question, there is an integer a, what is -1 into a equal to, -1 के साथ अगर आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -, ठीक है। एंड determine the integer, b part of it, determine the integer whose product with -1 is this. So we have to find out a number whose product with -1 is equal to -22. तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास आंसर आए 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। इसी तरह से अगर आपको चाहिए आंसर +37 तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -37 के साथ। जीरो आंसर लेने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो हमने बेटा मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने थे भी, किसके साथ इनको प्रोडक्ट किया जाए ताकि आपके पास आंसर आ जाए -22। ओके, सो इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप दूसरे मेथड के साथ भी कर सकते हैं, पहले तो मैंने ब्लैंक्स के साथ कराया। अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, -22 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आ जाएगा 22। और 37 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -37। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका प्रोडक्ट करके, ठीक है। दोनों ही मेथड आप लगा सकते हैं, ब्लैंक वाला भी और डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला भी। अब हमने क्वेश्चन करना है फोर्थ क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न। तो इसका हमने पैटर्न लिखना है, पहले हमने शुरुआत कहाँ से करनी है 5 के साथ, उसके बाद इसको डिक्रीज करते जाना है। ओके, -1 को सेम रखना है, ये देखिए यहाँ पर -1 तो -1 ही रहा, लेकिन 5 किस में चेंज होगा -1 में, तो इसका मतलब ये पैटर्न क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -5 आ जाएगा, इसको हम -5 ही लिख लेंगे, इसका आ जाएगा -4, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 + 1, तो ये आ जाएगा -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 + 2, ये आ जाएगा -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 + 3, ये आ जाएगा -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 + 4, ये आ जाएगा 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5 + 5, ये आ जाएगा +1 माइनस इंटू -1 +1 आ जाएगा, +1 का मतलब क्या है -5 + 6। तो ये आपका बन जाएगा पैटर्न, जो होगा क्वेश्चन नंबर 4। पैटर्न को समझने के लिए आपने क्या स्टेटमेंट को समझ लेना है बस, कि 5 को हमने -5 बनाया, तो ये पैटर्न पहले तो हो गया स्टार्टिंग वाला, कि जो लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट है वो ऐसी बन जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं -5। 4 को कैसे लिख सकते हैं -5 + 1, बिकॉज अगर -5 में आप 1 ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो बेटा ये पैटर्न बन गया, ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन के सभी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आगे भी हमारी प्रॉपर्टी इसमें हमने देखना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें देखिए, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a × b + a × c। इसमें एक ही जगह पर क्या है 48। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि a हमको कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगी आपकी प्रॉपर्टी बेटे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया, तो उस प्रॉपर्टी में क्या था ये देखिए, कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर था a × b + a × c, तो इसका हमने क्या कर लिया, वाइस वर्सा कर लिया। वाइस वर्सा मीन्स लेफ्ट से आप राइट भी बना सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने आपको राइट साइड दे दी प्रॉपर्टी की, तो इससे हमने लेफ्ट साइड बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम a को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये इसका 48 - 48 कॉमन आ जाएगा, तो इधर रह क्या जाएगा, इधर प्रोडक्ट के बाद यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 26, यहाँ से रह जाएगा -36। ओके, बिकॉज बेटा व्हेन आपने इसको कॉमन लिया -48 को, तो आपके पास यहाँ पर 26 प्लस करेंगे, जब -36 रह गया, तो ये आएगा -48 मल्टीप्लाई बाय 26 - 36, तो ये आ जाएगा 48 × -10, तो आंसर क्या आ जाएगा +480, बिकॉज दोनों ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब हम ये बी पार्ट में आपने देखना है कि पहले और तीसरे की जो प्रोडक्ट है वो 1000 बन रही है। मैंने आपको बोला था
कि जिसका प्रोडक्ट सिंपल वन और जैसे 10 में 100 में 1000 में, तो उसको पहले करना है, तो इसको कीजिए, इसको पहले हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पहले टर्म को आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। कम्यूटेटिव के साथ आप क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी, बी इंटू सी कर सकते हैं, बी इंटू ए कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म होगी ए इंटू बी, तो हमने इनको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर दें, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये बाई कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने इधर लिख देना है रीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो 8 इंटू 1000, ये वाला आपके पास आ गया 1000 आ जाएगा विद माइनस साइन। 8 इंटू 125 आपके पास क्या आ गया 1000, 1000 इंटू 53, तो आंसर क्या आ जाएगा -53,000। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। इसमें आपने रीजन में लिखना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करना है। ओके, क्लियर बेटा, दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ लेना है। अब इसमें आइए, इसमें भी हमने प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें तो सिंपल प्रोडक्ट है, अभी आपने देख लेना है। ठीक है, कि पहले हम किसको मल्टीप्लाई करें, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 15 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 100 प्लस का 100 इंटू -10। अब उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1000, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए 15,000। ये तो सिंपल ही हो गया। ठीक है, डी पार्ट में आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -41, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है बेटा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पर है बोथ टर्म्स ओनली 2 टर्म्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। पहले 41 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर -41 को आप कीजिए मल्टीप्लाई 2 के साथ। इधर आपने लिख लेना है रीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका होएगा 4100 प्लस ये आएगा -82, तो आपका आंसर क्या आएगा 4100 -82। ये 41 भी माइनस का है, 4100 भी माइनस का, 82 भी माइनस का है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4182। तो अब ये इस प्रॉपर्टी में आइए, इसमें आपने प्रॉपर्टी लगानी है वही, तो ये आप खुद कर लेंगे या मैं करवाऊँ, चलो करवा ही देते हैं। 625 को कॉमन लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, तो इधर आपके पास रह जाएगा -35। जब आपने यहाँ से प्लस साइन आ जाएगा, माइनस बाकी बच गया, -65 के साथ लग जाएगा, तो ये आएगा 625 -35 -65, ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 100, वो भी माइनस का। तो -100 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ये भी। ओके, एंड इसमें भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके साथ 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, 7 इंटू 50 350, 7 टू 1400 14, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 336। क्लियर बेटा, ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी DEP लिख देते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं DEP, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट वाला हो गया जी हमारा सिंपली, इसमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी लगाने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, -17, इसको आप लिख सकते हैं -30 + 1, तो उसमें आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए। ओके, 73 या 1510 प्लस 17 1 या 17, तो ये साइन का आपने ध्यान रखना है कि -17 का अगर हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 510, वो भी पॉजिटिव, बिकॉज एक माइनस का था दूसरा भी माइनस का, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। अगर आपके पास एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो ये हो गया 510 -17, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 493। ओके, तो इधर आइए, इसमें देखिए
तो ये आपकी टर्म होगी पहली टर्म, जो कि दूसरी, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 57 कॉमन आ रहा है, 57 कॉमन आ गया भाई। यहाँ पर माइनस बच गया, माइनस इंटू माइनस 19, यहाँ पर क्या बचा +1, तो ये क्या गया 57 माइनस 19 माइनस प्लस 19, 19 प्लस 1, तो 57 इंटू 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 04640, तो ये आपका आंसर क्या आएगा 640। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप सिंपली 1 लिख सकते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। 57 कॉमन था, उसको कॉमन ले लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके सभी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके आपने इनको समझ लेना है, ठीक है। और इसका रीजन मैंने लिखना यहाँ पर भूल गया, मैं लिख देता हूँ DP। DP मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका भी DP डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, आपने बताना है एक सर्टन प्लेस के बारे में जिसका टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट पहले आपने रीड कर लेनी है अपनी बुक से। या सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर विल लोड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो यहाँ पर पहले अपने नंबर लाइन बनानी है, इस पर रूम टेम्परेचर लिखना है 40 डिग्री सेल्सियस, पहले 40 डिग्री है, तो एवरी आवर ये कितना रिड्यूस होता है, 5 डिग्री रिड्यूस होता है, ठीक है। 5 डिग्री मीन्स डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एवरी आवर ये डिक्रीज होता है कि 10 घंटे के बाद कितना रूम टेम्परेचर होगा। ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो ये देखिए, पहला आर हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वें तक जाते जाते हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं नंबर लाइन के साथ, सीधा प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसी तरह बता देता हूँ। तो पहले था 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। ओके, फिर आपके पास आ गया -5, फिर आ गया -10। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा -10। ये आप कर सकते हैं नंबर लाइन के द्वारा, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड आपने क्या करना है, पहले टेम्परेचर आपके पास +40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है -5 डिग्री सेल्सियस। कितनी आवर के लिए, 10 के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर डिक्रीज है, 50 डिग्री। टोटल टेम्परेचर था 40 पहले, तो डिक्रीज होकर कितना रह गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 50 और 40 की जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स पहले टेम्परेचर था 40 डिग्री और ये डिक्रीज होकर कितना रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड, इट इज एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो इसमें आपके पास स्टेटमेंट है कि इनके क्लास में, इन अ क्लास टेस्ट में टोटल क्वेश्चन है आपके पास 10। ओके, स्टेटमेंट को रीड करते हैं ना। क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2। अगर कोई अटैम्प्ट नहीं करता तो उसके लिए 0 मार्क्स हैं। तो आपने देखना है कि 3 स्टूडेंट हैं, मोहन, रेशमा और हिना, इन्होंने कितना स्कोर किया। पहले ये देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं। 10 में से जो करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट के लिए -2। तो पहले मोहन के लिए देखिए, मोहन ने 4 करेक्ट किए, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 20 मार्क्स तो उसको मिलेंगे करेक्ट आंसर के। और इनकरेक्ट के कितने मिलेंगे, इनकरेक्ट के मिलेंगे इनको 12। ओके, सो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई, टोटल मार्क्स इसके हो जाएंगे 20 - 12, 8 मार्क्स। कितना ईजी है, ठीक है। करेक्ट आंसर रेशमा है सेकंड चाइल्ड, तो 5 मार्क्स मिले करेक्ट के लिए, -2 मिले इनकरेक्ट के लिए। तो करेक्ट के लिए होगा 25, इनकरेक्ट के लिए होगा 10। सो टोटल मार्क्स कितने रह गए इसके, टोटल मार्क्स रह गए इसके 15। समझ लग रहा है अभी।
ठीक है, अच्छे से समझ लग जाएगा आपको। करेक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर लो, इनकरेक्ट के लिए उनके सब्ट्रैक्शन कर लो, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके पास। अब इसका थर्ड पार्ट है। हीना, हीना एक स्टूडेंट है जिसने 10 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन किए, 2 इसके करेक्ट हो गए, 5 इसके इनकरेक्ट हो गए। तो इसने अटैम्प्ट कितने नहीं किए, 3 इसने अटैम्प्ट नहीं किए। तो 2 इंटू 5 10, 2 5 इंटू -2 -10। तो इसने जो 3 नहीं किए वो 0 हो, ठीक है। प्लस 10 है, -10 है, तो टोटल मार्क्स इसके कितने रह जाएंगे, सिर्फ 0 मार्क्स। क्योंकि ना तो इसने जितने अटैम्प्ट किए उसमें से भी 10 मार्क्स हैं, जितने करेक्ट थे तो उसके भी 10 मार्क्स, जितने इनकरेक्ट है उसके भी -10। तो करेक्ट और इनकरेक्ट के दोनों इक्वलाइज हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अ सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। तो इनको प्रॉफिट होता है अगर ये वाइट बैग को सेल करते हैं, ठीक है। अगर ये वाइट को सेल करते हैं तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। अगर ये ग्रे को सेल करते हैं तो इसके पास लॉस होता है 5 रुपीज़ का। तो अब इसका हम ये पार्ट करेंगे। ए पार्ट के लिए उन्होंने आपको दे रखे हैं बैग, कितने बैग दिए, 3000 बैग वाइट सीमेंट के। वाइट सीमेंट के कितने बैग हैं भाई, 3000। और ग्रे के कितने हैं, ग्रे के हैं भाई 5000 बैग। तो पहले इनकी कॉस्ट देखते हैं। 3000 के लिए इनको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, एक बैग के लिए 8 होता है, तो 3000 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 24,000 आ जाएगा प्रॉफिट। और लॉस कितना होता है अभी ग्रे बैग के लिए, 5 रुपीज़ होता है एक बैग के लिए। तो मल्टीप्लाई करो, टोटल लॉस कितना हो गया अभी 25,000, ये लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को हम अगर मिलाएं तो हमको पता चलेगा कि इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए प्रॉफिट है जो कम है और लॉस है वो ज़्यादा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब आप इसका टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24,000 और -25,000 -10 -1000। सो -1000 का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन का जो ए पार्ट था इसमें हमको लॉस कितना होया, लॉस हो गया भाई 1000 रुपीज़ का, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसके लिए हमको साफ ही पता चल रहा है कि इसका लॉस हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। अब इसका हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के लिए हमारे पास है, मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका ये पार्ट। देखिए 3000 है वाइट बैग, ठीक है। तो 8 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, 24,000 रुपीज़ हो गए। तो और इसका लॉस कितना होता है 25,000। तो 25,000 लॉस हो गया, 24,000 प्रॉफिट हो गया। तो लॉस ज़्यादा है, लॉस माइनस प्रॉफिट, तो आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 भी मिला इनको। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट में आपने क्या करना है, क्या इसमें आपने पता करना है कि अगर कंपनी 64,000 ग्रे बैग सोल्ड करती है और हमको इतना नहीं पता कि वाइट बैग्स कितने सेल हुए, ना तो कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए ना उसको लॉस होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, ये सीधी सी बात है भाई, जितने रुपीज़ का वो ग्रे बैग सोल्ड करेंगे उतने ही रुपीज़ का उनको वाइट बैग सोल्ड करना पड़ेगा। तो ना तो उनको लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों को फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट के लिए हमको पहले तो वाइट बैग नहीं पता कितनी सेल करनी है, तो इनको एक्स मान लो, एक्स। तो इनका प्राइस क्या है, वाइट बैग का प्राइस है 8 रुपीज़ और ग्रे बैग का प्राइस कितना है 5 रुपीज़। तो इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 8x इज इक्वल टू 002 कैरी 32,000। तो x 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 32,000। इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4000। तो इनको कितने वाइट बैग सोल्ड करने पड़ेंगे 4000। सीधी सी बात है भाई, टोटल कॉस्ट ग्रे की हो गई थी 32,000 है। इसी हिसाब से 32,000 चाहिए आपको चाहिए प्रॉफिट। सो दोनों को इक्वलाइज करने के लिए आपने क्या किया, उनकी कॉस्ट को बराबर रखा, बराबर रखने के बाद उनको सॉल्व कर लिया। अब लास्ट सम ऑफ द टुडे,
सो इसमें क्या करना है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। पहले -3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 है -9 के साथ। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आंसर -7 के साथ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। इसको 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के साथ, क्योंकि 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 132 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने अपने आप निकाल लेनी है, वेरी इजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, कीप शेयर एंड सपोर्ट।